Yeah, good morning, everyone. So today we are going to start the next uh, course of this BA final year syllabi, and this course aim to facilitate major and minor students of the BA final year. And in this course, earlier we have finished this marriage, family, and kinship course, and the second one in this series is the social stratification. So we are starting it today. And social stratification, as you know very well, some of you have might have read it in second year also and in other courses also. So it's very easy course to follow. And इसमें जो मेन मुख्य तौर से जो देखने को हम मिलेगा, that will be something social stratification and its different dimensions. Dimensions by I mean different approaches as well, different forms of social stratification and social mobility also. So there will be four main component or rather main four unit of this course, and this course is just introduced to the students of sociology just to see what is the social stratification, how society stratified in different stratas and different segments, and how social inequalities there, and how it is relevant for sociological studies, sociological understanding. For any student of sociology having some ideas about the society in their mind, it's very important to show and discuss some different forms as well as institutional manifestation of social stratification, theoretically as well as practically, whatsoever we are observing daily in our daily life rather, and how that can be sociologically understood. This is the main purpose, means the sole purpose of this introducing this course. As far as this course is concerned, this course is again divided in four major units, and four major units are something. First unit is dedicated to social stratification itself, which is just it will just concentrate on this theoretical understanding, like meaning, characteristics, and basis of social stratification in unit number one. And second part is the basic concept like social differentiation is there, and then social inequality is there, and social hierarchy is there. Three basic and most important aspect of social stratifications will be discussing in this first unit. And the second unit is dedicated to forms of social stratification. Form simply means caste, simply means race, simply means ethnicity, caste, race, ethnicity, class, and gender. Five major forms of stratification will be the main thrust of the second unit. And third unit is just dedicated to study the approaches of social stratification. As far as approaches is concerned, mainly two, three approaches have been given or discussed in this unit. And number one is conflict approach, number two is functional approach, and number three is symbolic and textualist approach. As far as this conflict approach is concerned, Karl Marxian thought will be there. And then for this functional approach, Max Weberian approach will be there, and Talcott Parson, Davis, and Moore symbolic inductionism will be there. So there are three basic approaches which we will be discussing in this third unit, and highlighting five or rather six main exponents or other main thinkers or contributors of this social stratification approaches. Number one is Karl Marx, repeating again. Number two is Max Weber. Number three is Talcott Parson. Number four is Wilwert and Moore and Davis, Kingsley Davis. So five will be there. And the last unit will be dedicated to this social mobility. Social mobility, as you know very well, we will be concentrating on this, its meaning, just to clarify its meaning, critical understanding, as well as characteristics of social mobility, then factors affecting social mobilities, then types of social mobility as well. And in this type, we will be discussing both horizontal as well as vertical social mobilities. So it is what should I say? It's a big one by I mean critically, just to make you understand, starting from that point and coming up to this mobility aspect, which is just highlighting some of the basic and some of the most important aspect of social stratification and some institutions like caste.
it is being supposed that there is no change, it is stagnated type of system, and there is no change in the caste system. So in this mobility unit, attempt will be made just to highlight how the caste system even is changing in these days. So it's a mixed sort of syllabus curriculum which we will be covering in coming as per the mandate of this course. 80 lectures are mandatory. 80 lectures are mandatory, and we'll try to confine within this curriculum and within this time span, and we will cover it. We will cover it very soon, and I'm expecting your full cooperation so that we can finish it well in time. So very good morning everyone. आज जो हम करने वाले हैं, नया जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दिया, उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता चलूं कि 4 यूनिट्स में ये पूरा कोर्स डिवाइडेड रहेगा, और चारों कोर्सेज में 4 यूनिट्स में पहला यूनिट अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट आएगा, और उसके साथ ही कंसेप्ट के साथ कुछ एक जो फॉर्म्स है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, जैसे डिफरेंशिएशन है, हायरार्की है, सोशल इनइक्वालिटी है, ये 3 चैप्टर पहले यूनिट के रहेंगे। और 3 चैप्टर्स के बाद जो सेकंड यूनिट हमारा आएगा, दैट विल बी फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हम रेस एंड एथनिसिटी को देखेंगे, कास्ट एंड क्लास को देखेंगे, और जेंडर इनइक्वालिटी को हम देखने का प्रयास करेंगे। थर्ड यूनिट्स में अप्रोचेस रहेंगी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, इसमें कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की अप्रोच आएगी, टालकोट पार्सन एंड डेविस एंड मूर की अप्रोच आएगी। ये 2 चैप्टर इसमें रहेंगे। और जो यूनिट नंबर 4 हमारा है, उसमें अगेन 2 चैप्टर इसमें रहेंगे। एक चैप्टर रहेगा हमारा सोशल मोबिलिटी, उसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसका मीनिंग है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इसको सोशल मोबिलिटी को। और अंत में जो अंतिम चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सो वी विल बी स्टार्टिंग, छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, ज्यादा बड़ा करिकुलम नहीं है, छोटी सी 150 पेज की किताब है। और अंत में आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि आपको आगे एमए के लिए जाना है और अपना करियर करना है अपना, तो आपकी सुविधा के लिए नेट सेट और एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अंत में इस किताब के अंत में आपको कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो हर किताब में आपको देखने को मिलेंगे। जो भी हमने समाजशास्त्र की सेवा में जो भी हमने प्रयास किया है, उसमें हर किताब में आपको 100-150 प्रश्न आपको मिलेगा। और हमारा दावा ये है, अगर आप उन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे तो मुझे ये लगता है कि आप आराम से अपना जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो कंपटीशन बेस्ड जितने भी एग्जामिनेशन हैं, आप उनको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि सोशियोलॉजी पर आधारित हैं, सोशियोलॉजी पर आधारित हैं, उनको आप आराम से कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, और ये भी हो सकता है कि इसी तरह की एक किताब, कोई 350-400 पेज की किताब जो है वो हमारी तैयार है, प्रेस में है, और ये भी हो सकता है कि वो 15-20 दिनों में आपके हाथ में हो। सारी हिंदुस्तान के सारी दुनिया के रीडर, आप जैसे स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए फायदे के लिए एक किताब हमने इस लॉकडाउन के दौरान जो है तैयार कर दी है, और जो आपको बहुत फायदा देने वाली है, इट इज एक्सपेक्टेड। उसमें चाहे पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे एमए का हो, एमफिल का हो, या नेट सेट का हो, और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड जो भी है, चाहे वो सिविल सर्विस का है, चाहे वो स्टेट का है, चाहे नेशनल का है, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके लिए सोशियोलॉजी +2 लेक्चर का है, किसी का भी है, उसके लिए ये किताब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ऐसा हमारा मानना है। और इसे एक बहुत बड़ा पब्लिशर, यूनिक पब्लिकेशन जो है, इसको वो छाप रहा है, और जो कि कंपटीशन में जिनका की बहुत ज्यादा नाम है। तो इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ इस बुक में तो है ही है, इन एडिशन टू ये वाले क्वेश्चन वहां रिपीट नहीं है, इन एडिशन टू दिस जो भी आपका सारा का सारा जो आपने अभी तक सीखा है, किया है, वो सारा का सारा उसके बाद भी आपको इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। कोशिश हमारी कि आपको बढ़िया एक स्टडी मटेरियल दिया जाए, बढ़िया पढ़ने के लिए आपको दिया जाए, ये हमारा प्रयास आपके लिए था, है, और आखिरी सांस तक रहेगा। चलिए, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो से हम ये कहेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम वो बात करने की आपसे प्रयास करते हैं, और जैसे शब्द है सोशल और साथ में स्ट्रेटिफिकेशन,
दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और सोशल शब्द हम इट इज वाइडली डिस्कस्ड रादर, कई सालों से, अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए रादर, 3 साल भी खत्म होने वाला है। 3 सालों से हम सोशल और सोसाइटी दो शब्द हैं उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी है तो वो भी सोसाइटी की ही स्टडी है। तो सोसाइटी शब्द पहले दिन से ही आप लोग जो हैं सुन रहे हैं हमारे मुंह से भी, और आप भी इसको वाइडली डिस्कस कर रहे हैं। सो अब जो मेन चीज रहेगी हमारी, वो मेन चीज यही रहेगी हमारा, इसमें मेन ध्यान ओके, इट वाज म्यूटेड। मैं ये कह रहा हूं कि जो सोशल शब्द है उसे हम 3 सालों से उसको पढ़ते आए हैं, स्टडी करते आए हैं। तो क्या दोबारा से सोशल शब्द को डिस्कस या डिस्क्राइब करने की जरूरत है? आंसर? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है सर। ओके, अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ जी। ऑडिबल हो सबको? हाँ जी सर। ओके, ग्रेट। तो मैं ये कह रहा था कि इज देयर एनी नीड टू डिस्कस एंड डिस्क्राइब दिस वर्ड सोशल अगेन? यस या नो? No, sir. ओके, ओके। सोशल सर्टिफिकेशन इज सच ए वर्ड, उसमें जो सोशल है उसको हम इग्नोर करते हैं, रादर वो भी रहेगा हमारे साथ, पर डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ हम सर्टिफिकेशन शब्द को ही लेंगे अभी। तो सर्टिफिकेशन को अगर देखने की कोशिश करें तो सर्टिफिकेशन इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इज सच ए वर्ड which remains with you with almost every concept of society which we are discussing in sociology or dealing with in sociology. सो सोशल इनइक्वालिटी के लिए हमें जो फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी के रूप में एक सोशल सर्टिफिकेशन को हम लेते हैं, वही हमें देखना है। कोई भी सोसाइटी जो है, एनी सोसाइटी कमिंग फ्रॉम डाउन टू एनी प्रिमिटिव सिविलाइजेशन टू डेट, तब से लेके अब तक जितने भी सोसाइटीज रही हैं, उसमें दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग जो हैं वो स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पे, और स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है सबसे पहले उसी में आने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो जियोलॉजी, ये भूगर्भ विज्ञान में जो वो है क्या बोलते हैं विज्ञान है, उसकी उससे ये लिया गया शब्द है, से सोसाइटी में लिया गया है। और भूगर्भ विज्ञान में, जियोलॉजी में इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है स्ट्रेट्रा। स्ट्रेट्रा, और स्ट्रेट्रा जो अर्थ है, स्ट्रेट्रा में सिंपल शब्दों में वहां क्या लेने की कोशिश की गई है, स्ट्रेट्रा मैंने स्तर। स्तर में सिंपल शब्दों में क्या रहेगा कि जब हम जियोलॉजी की बात करते हैं तो जियोलॉजी में जो शब्द हैं, जो शब्द वायमीन के जो वहां जो आपको देखने को मिलेंगे, वो शब्द कौन से,
कि जो चट्टान जो होती है, चट्टानों की जो रचना है, चट्टानों की रचना में अगर देखने की हम कोशिश करें तो कोई भी चट्टान ऐसी नहीं है कि एक आपको पत्थर की तरह, बड़ी टोल की तरह दिख जाए, मोनोलिथिकली इसको देख सके हम, ऐसा नहीं है। और मोनोलिथिकली ना देखे तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया कि दैट इज टेट्राफाइड, भिन्न भिन्न स्तरों में वो डिवाइड होती है, भिन्न भिन्न स्तरों में डिवाइड होते हैं। सपड़ोत्तर देखी होगी आपने, स्लेट देखी होगी, स्लेट फॉर्मेशन में खास करके जो सपड़ोत्तर है, वो सपड़ोत्तर जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अब डिफरेंट लेयर्स हैं तो डिफरेंट लेयर्स को अगर हम छीनी लेंगे या थोड़ा लेंगे, उसको आराम से निकालेंगे तो स्लेट के रूप में वो सारी की सारी जो चट्टान, पूरा पत्थर वो निकल के बाहर आता है। तो जो पत्थर बाहर निकलेगा दैट इज टेट्रा, एंड वन लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, और बहुत सारी लेयर जो हैं वो इकट्ठी होके फिर क्या करती हैं, वो इकट्ठी होके बहुत सारे बहुत बड़ी चट्टान को, बहुत बड़े पहाड़ का वो निर्माण करती हैं। सेम इज द केस विद एयर। और अगर हम जियोलॉजी में पृथ्वी की कंपोजिशन को देखें, आपको याद होगा जब हम आपको समझा रहे थे लास्ट ईयर, तो वहां हमने एक बात आपसे कही थी कि जो पृथ्वी है उसमें भी 3 बड़ी बड़ी लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। 3 बड़ी लेयर, बाहर का भाग जो क्रस्ट है, अंदर का भाग मेंटल है, और तीसरा भाग कोर है। और उसमें भी कई आगे जल के लेयर आपको देखने को मिलेंगी। और उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट वाला पेपर जब हम पढ़ रहे हैं, तो वहां भी हमने आपसे बात की थी कि जो पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उसमें लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है, उसकी हमने बात की थी। तो वो सारी की सारी लेयर्स हैं वो सारी, और वो इकट्ठा होके एक पूरे पूरे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। उसी तरह से पृथ्वी की रचना में भी जो 3 मुख्य मुख्य लेयर्स हैं, उसके अंदर भी कई स्ट्रेटाज हैं, और उसकी कंपोजिशन आगे चल के हम डिटेल में और देखने की कोशिश करेंगे। परंतु अभी के लिए जो शब्द हमारा यहाँ रहेगा, मुख्य तौर से आपने जो दिमाग में रखना है कि जिस तरह से पृथ्वी के निर्माण में, चट्टानों के निर्माण में एक से अधिक जो लेयर्स हैं उनका प्रयोग होता है, ठीक उसी तरह से समाज के निर्माण में भी अलग अलग तरह से स्ट्रेटास लेयर का प्रयोग होता है। अलग अलग तरह से स्ट्रेटास लेयर्स का प्रयोग उस तरह से होता है। और कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज समाज में मोनोलिथिक नहीं है। जैसे बड़ी सी टोल होती है, उसको अड्डू वाले को लगाना पड़ता है, अड्डू वाला आएगा, कारीगर आएगा, उसके लेद को ढूंढेगा और उसके बाद उसका वो निर्माण करता है, रादर उसको पत्थर निकालता है उसमें से। परंतु अगर आप सपड़ौता पत्थर देखेंगे तो अगर आप जैसा कोई भी विद्वान जाएगा तो वो अपने आप आराम से उस पत्थर को अलग कर सकता है। सेम इज द केस विद सोसाइटी, सेम इज द केस विद सोसाइटी। सोसाइटी इज स्ट्रेटाफाइड एंड इट डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटास, कई स्ट्रेटों में वो डिवाइडेड है। और जब वो डिवाइडेड है तो उसे आराम से देखा जा सकता है, उसे अलग से एनालिटिकली इसको आराम से अलग किया जा सकता है। तो ये इसको अलग करने की अगर हम देखने की कोशिश करें तो जब से दुनिया बनी है तब से ही जो इंसान है वो डिफरेंट डिफरेंट वजहों से एक दूसरे के साथ वो अलग अलग स्तरों में डिवाइडेड हैं। कैसे वाला, जैसे सुपीरियरिटी का है, इन्फीरियरिटी का है और इक्वलिटी का है। ये भाव, तीनों भाव, एक समानता का भाव है, एक जो है सुपीरियरिटी का भाव है कि मैं बहुत सुपीरियर हूं, और एक इन्फीरियरिटी का भाव है। तो ये तीनों जो भाव हैं, ये तीनों भाव समाज में अलग अलग स्तरों को पैदा करते हैं, अलग अलग स्तरों को जन्म देते हैं। और इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन और डिफरेंशिएशन है। इंट्रैक्शन और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मैंने भिन्न भिन्न विभेदीकरण, विभेद करना, भेद करना, एक दूसरे से अलग दिखना या दिखाने, एक दूसरे से अलग दिखने या दिखाने, विभेदीकरण की प्रक्रिया का नाम है। whereby some peoples come higher as compared to other। कुछ लोग जिसके विभेद कहाँ दिखेगा, अंतर कहाँ दिखेगा, कि कुछ लोग इसमें ऊपर दिखते हैं, अलग से दिखते हैं, तो कुछ लोग नीचे दिखते हैं। और उनमें कईयों में सबऑर्डिनेशन का संबंध होता है, अधीनस्थ होते हैं कोई, और कोई उनके मालिक होते हैं, कोई उसके ऊपर है तो कोई इसके नीचे रहते हैं। तो इस तरह से ये जो हायर है, रैंक देन अदर है, जो इसके आधार पे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जब इंडिविजुअल या ग्रुप, कोई भी व्यक्ति है या समूह है, जब उसको रैंक किया जाता है, रैंक माने उसका नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे, नंबर 10 पे, नंबर 100 पे कौन है। जैसे आपकी एडमिशन हुई तो एडमिशन के टाइम में भी आपको क्या रैंक करने की आपकी वो क्या थी, मेरिट बेस था। वो मेरिट में सबसे ऊपर, मान लीजिए 100 में से किसी ने 99 नंबर लिए हुए हैं, तो 100 में से 99 नंबर वाला जो है वो क्या करेगा, 100 में से 99 नंबर वाला जो है वो सबसे ऊपर होगा, और उसके बाद नीचे
कोई 50% वाला है, उसका कंसिडरेबली वैसा ही उसका स्टेटस होगा, वैसा ही उसके मुताबिक सारी चीजें रहेंगी। सो कहने का अर्थ जो है, कहने का तात्पर्य मात्र यही है कि जो भी इंडिविजुअल है, जो ग्रुप है, वो क्या करता है, अपने आप को इस तरह से रैंक करता है जिसमें कि कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन इन द हायरार्की ऑफ स्टेटस लेवल। कॉमनली वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में मूल्यांकन क्या है उस व्यक्ति विशेष का, वैल्यू क्या है उसकी, वैल्यूएशन इन ए हायरार्की ऑफ स्टेटस लेवल बेस्ड ऑन सोशल इनइक्वालिटी ऑफ सोशल पोजीशन। सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक पोजीशन जो उसकी स्थिति है, उसमें उसका वैल्यूएशन क्या है, मूल्य क्या है, उस सामाजिक स्थिति का मूल्य क्या है। जो सामाजिक स्थितियों का जो मूल्य है वो बहुत बहुत यहाँ मैटर करेगा। सामाजिक स्थिति का मूल्य क्या है, इसका सिंपल शब्दों में अर्थ हम देखने की कोशिश करें तो ये रहेगा कि सामाजिक स्थिति, जैसे मान लीजिए कि अगर हम सामाजिक तौर से ही बात करें, हम अपनी एजुकेशन को छोड़ दें और चीजों को छोड़ दें, तो सामाजिक स्थिति में अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी और शूद्रों की सबसे नीचे देखने को मिलेगी। तो ये एक सामाजिक स्थिति है, समाज इसको की मान्यता देता है। तो इसी तरह से जो वैल्यूएशन ऑफ हायरार्की जो रहेगा, दैट मैटर्स अ लॉट, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये हायरार्की में किसी व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन कैसे होता है, उसकी वैल्यू कैसे होती है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसी हिसाब से हम देखने की कोशिश करें तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इसी तरह से पूरे के पूरे समाज को भिन्न भिन्न स्तरों में, भिन्न भिन्न स्टेट्रास में डिवाइड करता है। और जो भिन्न भिन्न स्टेट्रास में डिवाइड करेगा, स्तरों में डिवाइड करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे समाज के हम स्तर कहते हैं, या स्टेट्रास कहते हैं, या लेयर्स कहते हैं। लेयर्स माने परतें, वो समाज की परतें हैं, समाज के स्तर हैं, स्तर हैं, वो स आधा त और र, सत्र नहीं, वो सत्र हो जाता है, या स्तर है, लेयर्स हैं, स्टेट्रास है, स्टेट्रास है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि पूरी हायरार्की ऑफ सोशल ग्रुप क्रिएट हो जाता है। हायरार्की माने ऊपर से नीचे को, हायरार्की किसकी होगी, और उस हायरार्की के मुताबिक जो कुछ एक लोग हैं वो हायरार्की में टॉप पे ऊपर होंगे और कुछ एक लोग हायरार्की में सबसे नीचे होंगे। और इस तरह से सबकी हर स्टेट्रा की अपनी एक अलग और कॉमन आइडेंटिटी रहती है, अलग और कॉमन आइडेंटिटी, परंतु सारे मिलकर, जैसे हम भारतीय समाज की बात करें तो अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे सारे के सारे स्तर, परंतु अगर अंत में हम बात करेंगे तो फिर सब के सब हम भारतीय हैं, सबके सब भारतीय हैं, ऑल आर इंडियंस। तो उसमें जब उसकी बात होगी तो इंडिया एक अलग से एंटिटी, अगर भारतवर्ष का नक्शा आप देखने की कोशिश करें, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके वहां नॉर्थ ईस्ट तक, तो वो सारा का सारा भारत एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के रूप में देखने की कोशिश करें तो आपको अलग अलग रीजन देखने को मिलेंगे, वो स्तर हैं भारत के, वो लेयर्स हैं, स्टेट्रास हैं। और उसके बाद जब हम पूरी उसकी ज्योग्राफिकल एंटिटी बात करते हैं तो भारतवर्ष का एक नक्शा हमारे सामने आता है। वैसे कल्चरल अगर जो डिफरेंट सेगमेंट्स को देखें तो नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, परंतु जब हम भारत के एक होने की बात करेंगे, 26 जनवरी आ रहा है जैसे, तो उसमें फिर दिल्ली में झांकी जो निकलती है वो पूरे भारतवर्ष की विविधता में एकता, भिन्न भिन्न है हम लोग, विविध हैं, डिफरेंशिएटेड हैं हम लोग, परंतु उसके बावजूद भी हम लोग एक हैं, वो सारा का सारा हमें एक मोनोलिथिक फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इंडियन कास्ट सिस्टम इसका सबसे बड़ा और बढ़िया एग्जांपल दिखता है स्ट्रेटिफिकेशन का, जिसमें कि सोसाइटी जो वो अलग अलग भागों में डिवाइडेड है और हर भाग का अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है, और उस अस्तित्व पहचान की वजह से पूरे का पूरा समाज वो स्ट्रेटिफाइड है, स्तरीकृत है वो, और स्तरीकृत होने के बावजूद भी फिर जो है वो अलग तरह से एक अलग से एंटिटी जो है वो देखने को हमें मिलती है। तो इस तरह से प्रिमिटिव टाइम से लेके आज के समय तक, मॉडर्न टाइम तक जो है ये एक रियलिटी है, सच्चाई है कि कोई समाज ऐसा नहीं रहा है जो कि वर्गीकृत ना हो, जो कि स्ट्रेटिफाइड ना हो। स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत समाज हमेशा रहे हैं, यूनिवर्सल है ये, और जब से दुनिया है तब से लेके आज तक ये रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में दो तरह की जो प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उसको हमें समझना पहले बहुत जरूरी है। और वो जो दो तरह की जो प्रोसेसेस हैं, एक को जैसे हमने पहले बात की, दैट इज डिफरेंशिएशन, अलग से इसको डिटेल में देखेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न दिखना, एक दूसरे से भिन्न दिखना।
जैसे मेल और फीमेल दो अलग अलग डिफरेंट दिखते हैं, पूरे समाज में देखें तो दो आपको अलग देखने को मिलेंगे। अब अगर सेक्स वाइज देखें तो, और उसके बाद रेस के आधार पे देखें तो एक काला एक गोरा अलग दिखेगा, ठीक है। हाइट के आधार पे देखें तो लंबा और नाटा वो अलग दिखेगा। तो इस तरह से जो विजिबल डिस्टिंक्शन होगी, डिविजिबल डिफरेंस जो दिखेगा, विजिबल डिस्टिंक्शन जो होगी उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और उसमें उसकी फिजिकल क्वालिटी जो है या उसका रैंक वाइज, ये जो अगर एमएलए कोई साहब हैं या कोई मंत्री साहब हैं तो वो अलग दिखेगा आम आदमी से। जब वोट मांगने आएगा, जैसे आप लोग भी बिल्कुल ध्यान रखें, अब पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब आपके पास 5 दिन तो आपके पाँव में आके पड़ेंगे कि राजन बाबू आप ही सब कुछ हो, आप सब कुछ हो, परंतु फिर 5 साल आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे व्यक्ति को चुने, सही से चुने। वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो अलग से एक स्टेट्रा बन जाता है और आम आदमी एक अलग से स्टेट्रा बन जाता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में भी इस तरह से हमें पीएम से लेके एक वार्ड मेंबर तक अलग से इस तरह से देखने को मिलता है। सेकेंड वन है इसमें रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि सोशल वैल्यूएशन क्या है। जैसे शब्द हमने पहले यूज किया था सोशल वैल्यूएशन, सामाजिक मूल्य आपका क्या है, उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होनी है। और सामाजिक मूल्य जिस पोस्ट का क्या है, मान लीजिए कि कोई प्रधान है तो प्रधान जी महाराज चयन पड़ी है, उसके बाद मिस्त्री साहब, मजदूर के मुकाबले मिस्त्री का वैल्यूएशन ज्यादा है। आम आदमी के मामले पॉलिटिकली देखें तो प्रधान का मूल्य ज्यादा है आम आदमी के मुकाबले, एक एमएलए का मूल्य ज्यादा है, जिसने क्योंकि एमएलए के साथ बहुमत है, लोगों ने उसको बहुमत दिया, वोट दिया और अपने बिहाफ पे फैसला करने के लिए उन्हें बोला कि आप जाके फैसला करो, हमारे बिहाफ पे डिसीजन लो। परंतु नहीं लेते हैं तो बोले 5 साल में तुझे देखेंगे। परंतु 5 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है बेटा जी, 5 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है और उसके बाद वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि वैल्यूएशन, सोशल वैल्यूएशन के आधार पे रैंकिंग होती है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं। इस तरह से देखने की कोशिश करें तो सोशल इनइक्वालिटी विल बी अनदर वर्ड, एक और शब्द रहेगा। सोशल इनइक्वालिटी जो होती है दैट इज इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय सोसाइटी, इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय सोसाइटी। एक इक्वालिटी की हम बात करते हैं, समानता मिथ है, समानता मिथ है, वो मिथ्या धारणा है। कोई भी समाज ऐसा नहीं जिसमें कभी समानता रही हो, मिथ्या धारणा है वो। और जब वो मिथ्या धारणा है तो वो समाज जो है वो कई हिसाब से, कई तरह से रिवार्ड की व्यवस्था करके, पनिशमेंट की व्यवस्था करके, एक अलग अलग तरह से स्टेटस में, पावर में, इनकम में, और स्टेटस, पावर, इनकम और क्लास के हिसाब से अलग अलग तरह से समाज जो है वो कैटेगरीज को क्रिएट करता है और इनइक्वालिटी समाज में लाता है। तो ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो हमारे साथ साथ चलेंगी। और इसमें ये तीनों की तीनों चीजें समाज में, दूसरे शब्दों में बोला जाए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के टर्म में, तो समाज में स्टेट्रास को क्रिएट करती हैं, लेयर्स को क्रिएट करती हैं, स्तरों को क्रिएट करती हैं। और इसकी वजह से जो अलग अलग भिन्न भिन्न हमारे जो क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न हमारी लेयर्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और इन लेयर्स को देखने की कोशिश करें तो ये लेयर जो होती हैं, इसमें अगर बहुत ही कम शब्दों में देखने की कोशिश करें तो पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ, तीन अति महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके आधार पर विजिबली माने मैनिफेस्टेड फॉर्म में दिखती हैं, प्रकट रूप में हमारे सामने आते हैं। तीन चीजें मैंने बात की, पावर, प्रेस्टीज एंड साथ में वेल्थ। पैसा जिसके पास ज्यादा होगा उसकी बल्ले बल्ले, और जिसके पास प्रेस्टीज ज्यादा होगी, इज्जत मान ज्यादा होगा, उसकी बल्ले बल्ले होती है। और उसके बाद पावर जिसके पास होगी उसकी तो बल्ले बल्ले है ही है। तो ये तीन बड़ी बड़ी जो स्टेटस हैं वो सारी चीजें रहती हैं और सारी सोसाइटीज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो वो पाया जाता है। और इसमें इसके आधार पे जो सारी सोसाइटीज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से, रहने वाले जो लोग हैं सोसाइटी में, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग होते हैं। अलग कैसे होंगे, पहले मैंने बात की थी, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, या पर्सनल किसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से जो है वो अलग रहते हैं। ह्यूमन सोसाइटी होमोजेनियस कभी नहीं रही, होमोजेनियस नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती, बल्कि वो हेट्रोजेनियस होती है। और हेट्रोजेनियस होने की वजह से जो नेचर, इवन नेचर जो भगवान ने बनाई है वो भी कभी होमोजेनियस नहीं है। कभी भी आप देखेंगे कि एक जंगल में एक जैसे पेड़ कभी नहीं हो सकते, अगर एक जैसे पेड़ होंगे तो वो कभी जी नहीं सकते। तो रादर वहां भी अलग अलग तरह के पेड़ होंगे तो अच्छा लगेगा। अगर गुलाबों का ही बगीचा
एक ही रंग के गुलाबों का बगीचा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, परंतु अगर अलग अलग तरह के गुलाबों के बगीचा होगा और फूल अलग अलग होंगे तो वो अच्छा लगता है। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि ये जो डिफरेंशिएशंस हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं, अगर वो अलग अलग तरह से इस तरह से रहेंगी तो ये समाज में अलग तरह से क्राइटेरिया को क्रिएट करती हैं और जिसकी वजह से ये सारी चीजें आती हैं। As far as meaning and definition of the social stratification is concerned, पहले हम आपसे बात कर चुके हैं कि मीनिंग वाइज इसमें क्या रहेगा। ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो जियोलॉजी, जो हमारे विज्ञान की भूगर्भ विज्ञान हम जिसको बोलते हैं, वहां उस विज्ञान की शाखा से लिया गया शब्द है और जिसका अर्थ होता है कि डिस्टिंक्ट वेरिएबल लेयर्स फाउंड इन रॉक्स। चट्टानों में जो अलग अलग जो लेयर्स होती हैं वो देखने को मिलती हैं, तो उससे हम स्ट्रेटास कहते हैं। पेज नंबर 3 में ही एक लेफ्ट साइड में एक इमेज बनी हुई है, उस इमेज को आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज की बात करें, जूलॉजी में रॉक्स की हम कैसे बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से सोसाइटी की जो लेयर्स हैं वो लोग बनाते हैं और लोगों में जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अलग अलग लेयर्स हमारी बनती हैं। और किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल है या उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके हिसाब से वो उसके पास वैसी प्रेस्टीज है, वैसी वेल्थ उसके पास है, तो वो अलग से पूरा देखने को हमें मिलता है। और इस तरह से कुछ एक और रिसोर्सेज हैं और जो कि लोअर कैटेगरी समाज में क्रिएट करते हैं, कुछ एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो समाज में हाई कैटेगरी को क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से बहुत कम शब्दों में कहा जा सकता है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो समाज में विजिबली अपरेंटली दिखने वाले भिन्न भिन्न स्तरों में एक समाज का विभाजन है और जिसमें कि अलग अलग स्तरों में बंटे हुए हम लोग दिखते हैं। हम लोग बाय मीन ये जो भी समाज के मेंबर हैं, या तो वो पैसे के हिसाब से हैं, अलग हैं, या तो वो प्रेस्टीज के हिसाब से अलग हैं, या तो शक्ति उनके पास जो पावर है उसके हिसाब से अलग हैं। कोई अपनी दिमागी पावर की वजह से अलग स्टेटा क्रिएट करता है, कोई अपनी फिजिकल पावर की वजह से अलग स्टेटा क्रिएट करता है, कोई अपना स्किल की वजह से उसके अंदर वैसी स्किल्स हैं उसका वो स्टेटा क्रिएट करता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये जो है वो सारी चीजें इसमें रहेंगी और इसमें जो वेल्थ इनकम का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहेगा। तो डेफिनेशंस आपने देख लेनी है, इसकी 7-8 डेफिनेशन है और उसके बाद कल हम इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।